इसका मुझे बताना पड़ेगा 10 किलो के 10 किलो पहले यहाँ पे ये ग्रो नहीं होता था मशरूम ये बहुत अच्छा इसका बेस जो है उसके अलग पैदा होता है इसमें स्पॉट आता है सर ये नंबर डाले हैं सर फार्मर्स का अच्छा फार्मर्स जितने भी एक इस राउंड में चीजें खानी पड़ती कोई कंपटीशन भी करो ये कंपटीशन नहीं है सर। अच्छा तो एक हमारी जूरी भी है वो टेक्निकल जूरी वो इनको असेस करेगी नंबर देगी फिर कंपटीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइस इसका सोइंग जो है कब करता है तो ये कितना देर चलता है मुझे लगाई था बताना ना नहीं एग्रीकल्चर मेले जहाँ तक सम्मा मिलना मिलने टेंशन क्या दो दुकाला कैसा जो तेनांग में हेरन छे चिकी तंग ताई का मुंह फलियां क्या दो तालो डोमेक तो सुनो कैसा देंबारंग तेने ngata I demstone bo tenna pia mixji khude chano ju I ka chalak somek le ya chalak minin yot kan gun kazuk riot te thangma ngata yang mimangs kun lai yang jingbat pan last tanches pia I demstone bo chostano ya mixji korang tenna no ki ngata chalak chik mimangs kun la zikra pulin tene skot pasana nges pera speci chik juna tene ngal la ngata la sena goma goma ngaya shuru chhatane tene टमाटर गुन बदा ज़्यादा में क्या तेने कुमारंग टमाटर बच्चे पोदा हनु एरिया ने शुरू सोंग क्या काजाने इंगता जिंगबात पौने टमाटर फिलोगा माने सुयंग बदा ज़्यादा में क्या तेने टमाटर शुरू सोंग क्या लेन मचेस क्या मिठांग माले तेने टमाटर बदलोब सोंगते दाता सा टमाटर वो ले लाख से टमाटर नल ना बाद इंजुत कान सोंगते ना वाले तेना जोगला सब्जी रिक्स मांग पोची ngata बट्रोल मेट पिन तेने तुस का ngata सब्जी बाद इन सोंग सोने रिक्स थेबा योन सोंग बेंगान यों शिमला मिर्ची यों कद्दू यों खीरा यों वाटरमेलन यों रिसेंटली ते जोगला सोने रिक्स मांग पोची यों साले तेना जोगला ngati iru तेने ngata yang सोने रिक्स या तंतो रिक्स सोमा रिक्स बट्रोल जच्चे शुरू change na no structure ngata saffron gun ngata structure de chul ngata dulin jina yot tena chokla I momphali wa ngata structure jat kan guni pya yang structure de azuk six pera chik no gale so pa momphali yo ngata sakya de thila chuk sano inna momphali yo ngata sakya de na chu ga chinang yo sketch de nang tena ngata momphali chak sano tene diring nang ne ngata jingbat paji kho I momphali yo demson na khyos de no ten khyos de ga chak dang du ngira six de no changme six de no mi ma changme ki momphali yo I ka chak suk je kambo so pa ta is pera te no ki I momphali yo chak kan be kan yongo chamsi yo bad na bad te ngata thik dulo midulok zer kan bo structure de azuk chinok tene lo khachik ne yang iong structure duben jinang tene jingbat bat changme yo patrol ja chenok skot panga ma I chok se spera mal demo chora rak sode chan chora rak ngata jingbat pan ma komshan inok tene I chok se spera kaltes thik yot na ngata gel na yang patrol ja chenok You tell Gumarang Pafin in Nalang Serpo Kaching night Narang Jospeniale. Yon Dumar Aduku Iula large scale Kachuala Ngata research Chokoshin Tuale. Teota East in Ngata research being good thing at Starchat Gunzat Goshin to Jua Puchin Kong, Samalok and Samalok Iwangata Jingba Paneka, young large scale lectures Koshichon Kale. Yam to change Ikangata Sonam, Pochana Kadu, Indo Kira, Chitam, much in Megan. Miman Samex in Namtos Kerina, Kaptas and Waya, chemical Mampo, you just not see in this Daksang Otena ngata spera mas demos spera chino gale photo periodicity jano ngata iru chodme chik badna chodma chik ta test ma jimbara gale sama thuki sino ngati test po yang jahone stontok batkan gune sang sarak turman indo gubi indo chi chodma badna ngata test po jimbara maskit po gale chik ta ngata sakya na nuspa gale teno gale aju chosma mans kyang lut kyang ta na tena nuspa changma thangma tutpa te ko to diwa maro I space chinge juna kaltes ngata stagmo phula ke no gale kone balang tuto rine rista jano rista jaste lut po rine khonste nang tena ta no sheti ke balangun phukma joste nang jana no gale
खेल चागुन ते उन ता चिना तंतो खुराना ना से ना ngata phecho na phena to na phara chen ya le te sabe I ngata chamchi ngata daksa chodma chenmo chad nang tontok chenmo chad nang sanla ngata la ngira itu jos pitok ngima chaps kyoda china ngata code god mo sana tangmo sonte so photosynthesis nang respiration nang gi jono ya le ina sanla ngata respiration sonte nang los chano ngima photosynthesis chane kharji du banong ya le so o des pera chik chang inok ngata iru ki sanla ngata ajupo energy union song pasana tena ngata ajupo success po mar sonte Samshi is tonto to angon la sai chenmo chame nang ngata iru natural azu condition ka mo chenmo charo mumma to chan nang ma chenmo teo ngima mang chao ngata organic khonsta no ina mane maximum ngata ta area mang chao ngata organic chosta no ina le nang jung khorbo ngata tarung third phase na no teo chon jina no teo nang organic du bena sama yongche chane lo ne na teo nang du chana tene ngata changma organic du chano tene thari yul mang chao ngata 34 yul thal jing ngata organic certification generate ang sote diale teo ne thore khorang ne product ko ne ka level thal ngan chano nispa ko ne product man pate ne home stay chom no ale home stay jat kan gune tene khampa ne te ka certificate kun charte borte nang ko ne tourist kun aftan ngan chano ki ngaje thas po organically certified in ye hamara certificate in jete tene ko ne stan na la te display chong ngata bor ngan chano Indo plan no. Indo re no. Changa. Ino ni soseki no. Olalo. 150 से वाले ये शूट देने वाले 1050 या 250 ml 150 से हाल सिलमन कलम समझे जो क्या यो हॉर्टिकल्चर आर्टिस्ट ना क्लास में करे यो दसा तांगेला इस बोडो ना मिंडे में डाले यो इना कॉन्सेप्ट बिचिन थबे कौन है यार ये रियली यूज करता किमसा वहां ता लोग से यूज चेस ये सुना थे 데모 미션 하세 똑같아 사자마 어쩌나 참 할래 참는 와래 오리지널 번째 거라 데모 이나 야래 아주나 바퀴 락파나 피나 미신 쳔메나 뭐 추샤노 봐 추당 당한 뭐고 처음에잖아 나 추메잖아 추메 배정 또 가다 뭐고 처음 서제스 정말 서미션 지금 다가다 경찰서 장 머린 장 미르 콜레트 나타 퓨어 버힘 산다지 हाई सब्सिडी 70% सब्सिडी Samino. मिशन को तांगे यहाँ जी आना डिपार्टमेंट में छोकन लगा रहा मन ये न्यूज़ सोचते हैं 오늘 짜 कौन 오늘 짜 ये क्या का इंडस्ट्री 19-20 हजार चुके डिपार्टमेंट होता है 70% सब्सिडी था Lodi kana. लड़ी Ina maxi copy channel na yang sitang pengin सी मार्च को मार का था स्टारगी मार पिंग आजू नुस्कार पिंग बादाम पिंग मार सेटिंग को आला या रहा है का कच्चा सी ina ये आजू फिर दसा का जे दो सिबक तो ने मार पिस ये सी से ना जो ओ तो ना ये ना 지금 건 뭐지는 안 때문에 सेटालू 세탈루야 मार दिया ना का 스마트폰 저도 거야 미 빠치야 되나 मैं समय 세탈루 거나 가지고 봐 समय दसा 스마트폰은 난 코프냐 सीज पे ना बिया नो पास में ना बिया जनेले ये देखना हॉर्टिकल्चर ही होस्ट गयाले को डिपार्टमेंट को सब्सिडी था नो मा कंसलर उन ससले क्या शायद Acha console thuru. ओले कोचा बड़ा मन चिको ने ला छि mana bingo ये ना बचा गया अच्छी माशा है छु बिल्कुल छ मानो है बाकी लखपा ना था मिन चेनो छु जानो छु सरकार को ना सोचेस को मतलब कम सोच रहा है ये सोचेस को मास वाला है छु बिल्कुल छ मार आयो छु मतलब प्योर कम से हो जानो छ ओ इना जब होम पास ना टिक जा रहा
यारी वो आप भी स्क्रैप तो चल रहा टोटल कम समय में ऑफिस इन्हें समाधि से इन्हें इधर खर्च जाती है पूरा इन्हें आता किलो चाहिए ना जो तो 450 ml के लिए ऑलमोस्ट मतलब करीबन आधा लीटर तो शेयर लेकिन ये वो मतलब किलो चाहिए ना वेस्ट को आधा हेक्स तो यानी ये जो इन्हें 100 जना पा ये 100 ग्राम तो 저 대만 어야리 어 이거 잡히까 아주 잣잔 타는 이 실무 타는 선 아예 पावाचोना सेरपो छेची 선 이외 तेना हम 선 मार इसका अब फालतू इसका नो मार आओ मत असत तरीमन मन सोच में क्या जी फुल अच्छी जगह तो ला अंजी ले आ तो ते छक तो यो पने 충지 아 यो पने 진짜 페이크 너. Fake 너. 이거 이거 니숨 샷 나서 다 집가는 지직고 이거 다 붙였다 जितने भी केवी के बिहार के डायरेक्टर और जितने भी हॉर्टिकल्चर के चीफ मैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और इस बीच में सबसे अहम जो पार्ट है इस प्रोग्राम का जितने भी फार्मर्स हैं ज़मींदार हैं मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि सर सबसे पहले तो मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर केविंद्र गुप्ता जी को धन्यवाद कहता हूँ सर कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस में भूपेश सर ने जो इनविटेशन दिया उसको एक्सेप्ट करके आज इस मेले में शामिल हुए। मैं आपको दो तीन विषय पे मैं अवगत करवाना चाहूँगा। सबसे पहले सर एवरी ईयर हम एग्रीकल्चर मेला कराते हैं वो मेला ब्लॉक लेवल पे भी होते हैं और ये हमारे स्टेट लेवल पे भी होते हैं। तो ये बड़ा मेला हम स्टेट लेवल पे कर रहे हैं और वैसे तो हर जगह पे इस बार क्योंकि बारिश ज़्यादा पड़ा है तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा तो नियर बाय फार्मर्स जो हैं वही आ पाए हैं। मगर मैं आपको अवगत करवाना चाहूँगा पिछले 6 साल में क्या क्या किया यूटी बनने के बाद। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो यूटी हमें दिया है वो यूटी साकार होते हुए देख भी रहा है और हो भी रहा है और एग्रीकल्चर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। मैं ये बताना चाहूँगा एग्रीकल्चर में 2019 से हमने मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसमें पूरे लद्दाख को ऑर्गेनिक बनाने का एक लक्ष्य रखा था तब के एलजी ने और तब के सेक्रेटरीज ने और जितने भी सेक्रेटरीज और एलजीज आए उनको बहुत पुश करते हुए वो आगे आ गए हैं सर। तो मैं एक बताना चाहूँगा अभी तक अब ये 3 फेज़ में ये ऑर्गेनिक विलेज हम सर्टिफाई कर रहे हैं सर जिसमें जितने भी यूरिया है हम पूरा फर्टिलाइज़र जितने यूज़ करते हैं वो एवरी ईयर 20% हम कम कर रहे हैं। तो पहला लक्ष्य था 2025 अब हमने लक्ष्य रखा है अभी 2-3 साल आगे बढ़ा के कि और भी जितने भी फार्मर्स थोड़ा हेजिटेट हो रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आज आपके शुभ हाथों से हम ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो डिपार्टमेंट के ऑर्गेनिक हम सर्टिफाई करने के बाद जितने भी ऑर्गेनिक विलेजेस हैं उनको हम पैकेज फर्स्ट टाइम आपके हाथों से ये आज इनॉग्रेट होगा। तो मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको बहुत पुश करने की ज़रूरत है। जितने भी आपने देखा होगा अभी स्टॉल्स में हमारे वेजिटेबल जितने फार्मर्स लाए हैं वो दूर से लाए और इंटरप्रेन्योर्स खासकर सर जितने भी इंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत अपना मेहनत करके गवर्नमेंट के सपोर्ट भी है उनके पास मगर और भी सपोर्ट होने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं ऑनरेबल एलजी केविंद्र गुप्ता जी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सब इंटरप्रेन्योर्स चूँकि सब यंगस्टर्स हैं तो उनकी तरफ से भी उनको सपोर्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो भूपेश सर को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं और एक चीज़ ये बताना चाहूँगा सर कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं मगर प्रोडक्ट्स आप देखेंगे हमारे पास इतने प्रोडक्ट नहीं है कि हम कोई बोलेगा कि 20 टन या 50 टन टमाटर दो एक टाइम पे निकल जाता है मगर हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं वो नीश हैं वो अलग हैं और वो ऑर्गेनिक हैं तो उसके लिए एक नया डेडिकेटेड मार्केट खोलना बहुत ज़रूरी है। हमें बहुत आशा है न्यू ऑनरेबल एलजी से। तो मैं दूसरी बात ये भी कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के सर आपने देखा होगा हमारे सब्सिडीज़ भी बहुत दे रहे हैं सर। लद्दाख ग्रीन हाउस जो कि हम 2 साइज़ में देते हैं वो हर जगह पहुंचा हुआ है। ले और कारगिल में जितने भी फार्मर्स हैं जो भी हम पर ग्रीन हाउस सब्सिडी 2 लाख अबव दे रहे हैं सर। ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं होगा जो इतना ज़्यादा सब्सिडी दे रहा है
तो मैं मोदी गवर्नमेंट को और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद कहना चाहूँगा इस सपोर्ट के लिए। और तीसरा चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि एक इशू जो मैं सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगा ऑनरेबल एसजी और सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भूपेश सर को, कि अभी एक रिसेंट मीटिंग हुआ था जिसमें हम जितने फार्मर्स हैं वो ये सोच रहे होंगे अभी बैठे बैठे अल्फ़ा का बहुत इशू है सर। जितने भी इधर अल्फ़ा है वो बहुत बड़ा फॉर्डर है हमारे लिए, उसमें बहुत बड़ा इशू है। उसमें मैं थैंक यू कहना चाहूँगा आपको कि एलजी साहब ने कमेटी बना के हम असेसमेंट कर रहे हैं और इसी 10 दिन में वो असेसमेंट पूरा होके आपके टेबल पे भी आ जाएगा सर। तो मैं हमारी तरफ से बिल्कुल जितने भी फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर फार्मर्स और एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से अभी आपको तहे दिल से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी फार्मर्स हैं वो अल्फ़ा हम ऑल कहते हैं, उसको कंपनसेट करिए, या कंपनसेट हम नहीं कर सकते तो मुश्किल होता है तो या फीड करना, फीड देना, या हमारे नीचे से पंजाब से भूसा लाना या सेलेक्स लाना, उसको बहुत ध्यान में रखने की ज़रूरत है। मुझे पूरा आशा है आपके लीडरशिप में ये पूरा होगा, तो एक स्पेशल पैकेज का भी मैं मांग करना चाहूँगा सर। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे फार्मर्स हैं वो बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं कि और एक चीज़ हम नया इनिशिएटिव ये ले रहे हैं सर, जितने भी ऑर्गेनिक, पहले लद्दाख एक सेल्फ सस्टेनिंग एक रीजन था, एक डिस्ट्रिक्ट था, उसमें जितने भी सीड्स निकलते थे वो लद्दाख वाले खुद ही निकलते थे। अभी तो हाइब्रिड वैरायटीज़ आ गए, तो अभी हम नया इनिशिएटिव ये ले रहे हैं सर। भूपेश सर भी बिल्कुल एग्री करेंगे कि जितने भी सीड प्रोडक्शन हो रहे हैं हम लोकल्स का भी एक सीड प्रोडक्शन निकाल के सीड बैंक बना के उसको भी हम प्रमोट करें। हमारी इंस्टीट्यूट ने जो हम लोग स्टेट डिपार्टमेंट के साथ शेर कृषि यूनिवर्सिटी सभी लोगों ने मिलकर काम किया है, और आज के दिन में जो ये सब इतनी वैरायटी ऑफ वेजिटेबल एंड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स ये सब एंड फ्लावर्स की इनको देख काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड यूटी बनने के बाद में और भी जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है उनमें काफ़ी अच्छा है। एंड जो अभी स्टेमजिन साहब ने बोला कि ऑर्गेनिक, और जो बाई डिफॉल्ट यहाँ की जो भी सब्जियाँ होती है ऑर्गेनिक होती है। एंड गॉड हैज गिवन कि यहाँ का ग्रोइंग सीजन बहुत कम होता है, तो जो भी सब्जियाँ होती है उसकी साइज बहुत बड़ी होती है। आपको पम्पकिन अराउंड 50 kg होंगे, वाटरमेलन ऑन एवरेज 10 kg, यानी जो भी सब्जियाँ उतनी वैरायटी दिल्ली में नहीं जितनी सब्जियाँ यहाँ होती है। और सबसे बड़ी बात है प्योर ऑर्गेनिक है एंड ऑफ सीजन वेजिटेबल है। ये सब सब्जियां अभी दिल्ली में आपको नहीं मिलेंगी, जितने भी कॉलीफ्लावर है, ब्रोकली है, ये सारी सब्जियां आपको दिल्ली में, क्योंकि दिस प्लेस इज वेरी सुटेबल फॉर ग्रोइंग द हाई वैल्यू क्रॉप्स, प्योर ऑर्गेनिक। जैसे जुकनी का हाई वैल्यू आप आज की दिल्ली के मार्केट में देखिए, ब्रोकली इज सो एक्सपेंसिव, बीट रूट इट इज वेरी स्वीट। लोग पूछते हैं कि इतनी बड़ी सब्जी है, ये काफ़ी बट स्टिल बड़े होने बावजूद ये काफ़ी टेंडर होते हैं। और ये भाई और जो ऑर्गेनिक है तो इसलिए ये यहाँ जो भी सब्जियाँ हो रही है ऑफ सीजन वेजिटेबल है उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत है। और जैसे फ्लावर्स में जितने भी यानी हाई वैल्यू फ्लावर्स, क्योंकि यहाँ का फोटो पीरियड डे लेंथ बहुत लंबा होता है, उस कारण कुछ फ्लावर इंडिया में केवल इसी जगह हो सकते हैं। जैसे लिलियम है, ग्लेडियो, आपका ट्यूलिप, उसके बल्ब यहाँ बन सकते हैं, जो कि बाहर कंट्री अभी ये सब चीज़ें हम लोग हॉलैंड से मंगाते हैं, तो इसकी पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। फ्रूट क्रॉप में देखा जाए एप्रिकॉट, वर्ल्ड का बेस्ट एप्रिकॉट हमारे यहाँ होता है। और तो अभी यूटी बनने के बाद इस पर काफ़ी फोकस दिया गया, अब काफ़ी इसका एक्सपोर्ट भी स्टार्ट हो गया, तो इसकी पोटेंशियल बहुत है। पूरे वर्ल्ड में देखा जाए एप्रिकॉट सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी हमारे 85 टाइप्स के एप्रिकॉट हमारे पास होते हैं, तो उसकी बहुत वैल्यू है। इसी तरह से और भी जो फ्रूट को सी बकथॉर्न देखा जाए, सी बकथॉर्न गोल्ड माइन यहाँ का देखा जाए तो अभी पूरे इंडिया में 70% सी बकथॉर्न हमारे यहाँ आधार पर ग्रो करते हैं। और इसके आम के आम गुठली दाम देखा जाए तो हर भाग से इम्पोर्टेंट है। इसकी फ्रूट्स में मैक्सिमम विटामिन सी होते हैं। इसकी सी बकथॉर्न लीव्स जो कि चाय से बेटर होती है, सी बकथॉर्न का ऑयल जो कि हार्ट के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये सब पैकेजिंग करके एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो भी यहाँ ग्रो है उसकी एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत अच्छा हो जाता है। सेम थिंग फ्लावर सीड्स, वेजिटेबल सीड, चूँकि यहाँ क्लाइमेट सीड प्रोडक्शन के लिए वेरी आइडियल है। अभी हम लोग जितने भी सीड है बाहर कंट्रीज में
प्राप्त करें। सबसे पहले मैं आमंत्रित करती हूँ तार गांव के नंबरदार श्री सोनम कुंजो जी, ईगू गांव के नंबरदार श्री त्रिंगुरमे जी, केरे गांव के नंबरदार श्री टाशी टुंडुप जी, ईगू गांव के नंबरदार श्री टाशी टुंडुप जी, खालसे तकमाचे गांव के नंबरदार श्री टाशी सेपेल जी और श्री अंगचुक दोरजे जी, तारू गांव के नंबरदार श्री टिल्ले नुरबू जी, तारू गांव के नंबरदार श्री टिल्ले नुरबू जी और अंत में त्या गांव के नंबरदार श्री सेवांग गैलसन जी। त्या गांव के नंबरदार श्री सेवांग गैलसन जी। आप सभी को इस अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि आज इस किसान मेले के अवसर पर आप सबके बीच में आने का मौका मिला। यहाँ पर हमारे उपस्थित सभी अतिथिगण, सबसे पहले मैं आप सभी को इस किसान मेले के आयोजन पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ आकर मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। आपने जो यहाँ बुला करके एक सम्मान दिया है, क्योंकि लद्दाख के किसानों की मेहनत और लगन के इस प्रत्यक्ष अनुभव को मैं महसूस कर रहा हूँ। अभी बाहर जो प्रदर्शनी किसानों द्वारा लगाई गई, उसको देख करके मैं निश्चय ही अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार से जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स नहीं हो पाते हैं, लद्दाख हमारा एक अलग है। तो इसके लिए यहाँ के किसानों को, यहाँ के डिपार्टमेंट्स को, यहाँ के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को, यहाँ के DRDO को, सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लद्दाख की जो कृषि है, खेती बाड़ी है, वो वाकई में ही अद्वितीय है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ ऊंचाई, कठोर जलवायु और शॉर्ट पीरियड, अल्प अवधि की फसल ऋतु जैसी चुनौतियों के बावजूद हमारे किसानों ने ये जो खेती करके दिखाई है, वो अपने आप में अद्वितीय है। यहाँ की धरती ने हमें सिखाया है कि कठिन परिस्थितियों में भी किस प्रकार से यदि हम संकल्प ले लें और परिश्रम करें तो निश्चय ही उसका फल हमें मिलता है। आपकी खेती की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये प्राकृतिक रूप से जैविक है और ऑर्गेनिक है। ये अपने आप में एक बड़ा सर्टिफिकेट है और बड़ा उदाहरण है। यहाँ के किसान न्यूनतम रासायनिक प्रयोग के साथ उत्पादन करते हैं और कुल्लड़ जैसी परंपरागत जो हमारी यहाँ पर प्रणालियाँ हैं, हमें बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि किस प्रकार स्थानीय लोग उस ज्ञान पीढ़ी को दर पीढ़ी संरक्षण के माध्यम से उसका आधार बना रहे हैं। आज के इस फंक्शन के लिए ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता जी और मैडम बिंदु गुप्ता जी, फर्स्ट लेडी को हम सब की तरफ से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के ऑफिसर और ऑफिशियल की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा सर। थैंक यू वेरी मच सर। आपके यहाँ पे हमारे इस एग्रीकल्चर एग्जीबिशन को आने से हमारे ऑफिशियल का मनोबल तो बहुत बढ़ गया सर, और
इससे क्या हुआ सर, हमारे जितने भी फार्मर जिन्होंने ये एग्जिबिट्स लाया सर, फ्लावर्स का लाया, ये जितने भी फ्लावर्स है तकरीबन एक फ्लावर जो है एक फार्मर का है। तो बाहर जितने भी प्रोडक्ट्स लाए थे सर, एक प्रोडक्ट एक फार्मर का है। तो जितने भी स्टॉल में है सर फार्मर इन्वॉल्व है, तो इन फार्मर सब का इतना वो हो जाता है सर आप लोगों के यहाँ पे प्रेजेंस है। तो हम सब आपका बहुत आभारी है सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर एग्रीकल्चर से भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर, क्योंकि टाइम निकल के हमारे इस फंक्शन में शामिल हुआ सर। सो भूपेश चौधरी श्री ISO एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर, जिनके कारण ये जितने भी फंक्शन हम आज ऑर्गेनाइज कर पाए सर, उनके ही डायरेक्शन पे हमने ये सारा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया सर। आई एम वेरी थैंकफुल टू एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी एग्रीकल्चर भूपेश चौधरी सर। सर थैंक यू वेरी मच सर। मैं थैंक यू कहना चाहूँगा यहाँ पे जितने भी ऑफिशियल यहाँ पे डिग्निटरीज इस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए सर, उन सबको मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा। और मैं जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट जो नंबरदार जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन लेने के लिए आए और उन्होंने हमें ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन को बनाने में काम करते समय हमें साथ दिया सर, उन नंबरदार सबको और उनके पीछे जितने भी गांव में मेंबर्स हैं उन सबको भी थैंक यू कहना चाहूँगा सर इस मंच से। सर थैंक यू वेरी मच। ये हमारा बहुत पुराना सपना था सर, एक ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन उनके हाथ में दे सके, तो आज आपके शुभ हाथों से सर ये भी हमें मौका मिला सर। थैंक यू वेरी मच। तो जितने भी फार्मर जिन्होंने ये एग्जिबिट यहाँ पे लाया, तो उनको और जितने भी एंटरप्रेन्योर जिन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया, और ये जितने भी फार्मर यहाँ आए और बाहर से जितने भी लोग शाम तक देखेंगे, उन सबको इससे काफ़ी हौसला अफजाई हो जाता है सर। तो मैं सभी फार्मर्स को जिन्होंने ये प्रोडक्ट्स और एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने ये स्टॉल लाया सर, उन सबको भी मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। सर यहाँ पर जो आज एग्रीकल्चर एग्जीबिशन है उसको देखिए, कृषि विभाग द्वारा आज यहाँ किसान मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें एक तो ऑर्गेनिक जो हमारी खेती है उस पर विशेष ध्यान दिया गया था, और उसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो जिस पर किसानों ने बहुत मेहनत की है, डिपार्टमेंट में बहुत मेहनत की है, वो आज प्रदर्शनी के माध्यम से आज हमने यहाँ पर देखे हैं। और आने वाले समय में लद्दाख को पूरा ऑर्गेनिक खेती का एक हब बनाया जाए, इस प्रकार की सरकार का भी प्रयास है। और ग्रीन हाउसेस के माध्यम से यहाँ के किसान 12 महीने तक जो उनकी खेती है उसको प्रोत्साहन देने का जो प्रयास किया जा रहा है, और सरकार उसके लिए सब्सिडी भी दे रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यही है, किसानों की इनकम यहाँ पर दुगनी हो पाए। और हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो उसमें हमारे डिपार्टमेंट का तो योगदान है ही, उसके अलावा DRDO का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो रिसर्च के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहन देते हैं। हमारे जो लोकल किसान हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे आज इस मौके पर हमारे जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर जो कृषि विभाग देखते हैं वो भी आप उपस्थित हैं, श्री भूपेश चौधरी जी जो IAS हैं और जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, और इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप इसी प्रकार से कृषि को आगे बढ़ाने का कोशिश करते रहिए, ताकि हमारे किसान भाइयों को पूरा से पूरा सहयोग डिपार्टमेंट की तरफ से मिले। सर ये जी रिसेंट रेनफॉल हो, उसकी वजह से जो इरिगेशन खुल का काफ़ी नुकसान हुआ, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से उनको कम? देखिए, इस बार बरसात ज़्यादा हुई है, तो उसके लिए हम एक मीटिंग कर चुके हैं, और जो कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, जो बेस्ट पॉसिबल होगा उसको हम करेंगे। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर।